Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we'll be covering part 4 on this chapter, which is matter around us pure. So in this lecture we will be discussing concentration of solution, and we will be covering all the formulas of concentration of solution, and we will be solving all the numericals which are present in our exercise, and second we will solve some additional numericals on all the formulas. Okay, so let's start our today's lecture, which is our first topic, concentration of solution. So सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं. concentration of solution का मतलब क्या होता है. So concentration of solution एक measure है. It is a measure by which we can find out how much amount of solute is dissolved in a solution. कि कितना amount of solute dissolve है in a given amount of solution, or we can say solvent. So let's write the definition first. What is concentration of solution? It is a measure of the amount of solute that has been dissolved in particular solvent, or we can say solution. So what is concentration of solution? It is a measure of the amount of solute that has been dissolved in particular solvent, or we can say solution. So this is the definition of percentage of concentration of solution. So it can be measured in three terms. For this we have three formulas. Let's see, we have to write them. We have three formulas for that. The first formula is percentage mass by mass. In this, the given amount of solute is present in terms of mass, and the given amount of solvent or solution is also in terms of mass. So whenever this is given, so you have to use percentage mass by mass, or we can say percentage m by m. So what is the formula of this? We have to write mass of solute divided by mass of solution, and to find out the percentage we have to multiply with 100. So this is the formula for finding out the concentration of solution in terms of mass by mass. So whenever the units of solute are given in gram or kilogram, you have to use mass, and whenever the units of solvent is also given in terms of gram or kg, you have to use this m by m formula. Second is, let's change the color. Second is percentage mass by volume. Percentage mass by volume. So always mass of solute will be in your numerator. So what is this formula? Percentage m by v. So our numerator will be mass of solute divided by volume of solution, multiply 100. So when you have to use this formula, when your solute is given in terms of mass, mass means the units can be given in gram or kilogram, and the volume and the solution is given in the terms of ml, milliliter or liter, then you have to use this formula, means the volume is given of solution. So you have to use m by v formula for finding out the concentration. Now let's write the third one. Third one is percentage volume by volume. So what will be the formula? सेम जैसे बाकी दो की थी, v by v, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन multiply 100. So this is
दिस आर द थ्री फॉर्मूलाज। थर्ड वन आपको कभी यूज़ करनी है जब आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन ये सब के सब आपको किस में दिए हुए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म्स में आपको कैसे दिए, कैसे पता चलेगा, उनकी यूनिट क्या होगी, ml और लीटर्स, है ना। सो दिस आर द थ्री फॉर्मूलाज। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दिस पेन इज अ सॉलिड, अगर मैं इसके ऊपर एक दूसरा पेन रखूँ, बोथ आर सॉलिड, सो बोथ सॉलिड विल टेक द प्लेस ऑफ देयर इट्स ओन, मतलब दोनों ही अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे जब भी मास और मास मीन सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस होंगे, वहाँ पे दोनों क्या करेंगे, अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। एंड वी नो सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बट इन दिस सेकेंड केस यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मास होता है हम इसको मान लेंगे सॉलिड टर्म्स में, इट इज़ गिवन इन सॉल्ट, एंड वॉल्यूम मतलब लिक्विड टर्म्स में इन वाटर। बट आपका जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस इनसाइड द वाटर, इट विल नॉट टेक सम एडिशनल स्पेस इनसाइड इट, वो अपनी स्पेस वाटर के अंदर ही ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहता है इट इज़ इक्वल्स टू सॉल्वेंट, इट इज़ इक्वल्स टू सॉल्वेंट, हम ऐसे ही ले सकते हैं। यहाँ पर हमको एडिशन नहीं करना है बिकॉज सॉल्ट अपनी एडिशनल स्पेस वाटर में नहीं लेता है। अगर हम लोग रखें कि यहाँ पे दोनों चीज़ें सॉलिड सॉलिड है तो वो दोनों अपनी क्या लेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्पेस। तो जब स्पेस दोनों अपने एडिशनल ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिशन। बट मास बाय वॉल्यूम में क्या हो जाता है, डिसॉल्व। इसके लिए सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। थर्ड वाले में क्या होगा, अगर मैंने हाफ वाटर फिल लिया है, हाफ वाटर लिया है वाटर का, सेकेंड ग्लास में भी लिया है हाफ वाटर, दोनों को फिर मैंने क्या कर दिया, मिक्स। क्या वो हाफ वाटर फिल्ड ग्लास वो उसके अंदर ही डिजोल्व हो जाएगा, या क्या वो अपनी स्पेस एडिशनल लेगा, वो पूरे ग्लास को क्या कर देगा, एडिशनल स्पेस लेके फिल कर देगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी क्या रहेंगे, स्पेस वो लोग टेक प्लेस करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन। सॉल्यूट यहाँ पे कैसे मिलेगा आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, उससे आपको क्या है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे भी हम लोग सॉल्यूशन को दो वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड, सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहता है, वेरी लेस कंपैरेटिवली, सॉल्यूट इज लेस। एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो रहता है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा। सो कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्यूट अमाउंट इज मोर, सॉल्यूट इज मोर। ये दो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। सो ये कॉन्सेंट्रेशन का न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 18, थर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉलिड क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व। इसमें 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व, मतलब मैक्सिमम अमाउंट सोडियम क्लोराइड का क्या हो चुका है, डिसॉल्व। एंड सोडियम क्लोराइड किस में डिसॉल्व हो रहा है, इन वाटर। सो सोडियम क्लोराइड इज इन द फॉर्म ऑफ क्या दिया हुआ आपको, 36 ग्राम। 36 ग्राम मीन्स ये है मास, यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको यूनिट ग्राम गिवन है, मीन्स इट इज़ मास। एंड सोडियम क्लोराइड का अमाउंट क्या है, कम है, सो इट विल बी योर सॉल्यूट। सो मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। ये किस में डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर, और वाटर का भी किस में दिया हुआ है आपको, मास में दिया हुआ है, क्योंकि उसकी यूनिट क्या है, ग्राम, विच इज़ 100। तो व्हाट इज द सेकेंड थिंग विच इज़ गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट, solvent is water which is 100 gram. Now you have to find its concentration. यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर का भी यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है, तो टेम्परेचर का हमारा कोई भी टर्म फार्मूला में भी कंसिडर नहीं आता, तो वहाँ पे इसका भी कुछ देखना नहीं है। सो यहाँ पे कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन, वी विल यूज़ परसेंटेज मास बाय मास। सो क्या फार्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हमेशा लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको मास ऑफ सॉल्यूट तो डायरेक्टली गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट इज 36, बट व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल्स टू सॉल्यूशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्राम ग्राम है,
तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, एडिशन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल गिव यू सॉल्यूशन. सो व्हाट वी हैव टू राइट, सॉल्यूट का अमाउंट हम ऊपर लिख सकते हैं 36, नीचे सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट विच इज़ 100 प्लस 36. तो इट विल गिव, मल्टीप्लाई क्या करना होता है आपको, 100 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए. ठीक है, 36 बाय 100, 36 मल्टीप्लाई 100. You will get the answer something like this, 26.4%. So this will be the answer of the concentration of solution of this question. अब यहाँ पे ग्राम और ग्राम दिया हुआ, इसकी वजह से ये आंसर आया. यहाँ पे अगर यूनिट्स चेंज हो जाएं तो आंसर विल बी डिफरेंट. लेट्स सी क्या डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, ये आप, आई होप आप सबने लिख लिया होगा. यहीं पे हम लोग कुछ चेंज करते हैं. ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस. आई एम रिमूविंग दिस. ठीक है, एक न्यू स्लाइड लेते हैं हम लोग. न्यू स्लाइड यूज करते हैं. यहाँ पे इफ amount of solute is given as 36 gram and amount of solvent is given as 100 ml, देन आप कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका ग्राम में गिवन है, इट मीन्स मास गिवन है, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन ml मीन्स वॉल्यूम गिवन है. तो द फॉर्मूला विच विल बी यूज्ड हियर इज m/v. m/v परसेंटेज की क्या फॉर्मूला है, इट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट. ऊपर क्या लिखना हमेशा, सॉल्यूट. हियर मास इज गिवन, तो मास ऑफ सॉल्यूट, एंड नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. एंड ये वाला वो वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूट है डिज़ोल्व हो जाता है. द सॉलिड डिजोल्व्स इन द लिक्विड, इट विल नॉट टेक एडिशनल स्पेस. तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते थे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मास ऑफ सॉल्यूट हम ले लेंगे डायरेक्टली विच इज़ 36 ग्राम, एंड सॉल्यूशन जो कि इसमें डिजोल्व अपने आप ही हो जा रहा है, वो 100 प्लस 36 अपनी स्पेस नहीं लेगा. हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, ग्राम लिखा है मैंने, इसको कैंसिल करते हैं अभी. 36 divided by 100 multiply 100. So this 100 gets cancelled, you get directly the 36% as concentration. तो कैसे आंसर चेंज होता है यहाँ पे आपने देखा है ना. हमारे क्वेश्चन में ग्राम और ग्राम दिया हुआ था, बट इफ क्वेश्चन इज गिवन एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 36 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एज 100 ml. तो यहाँ पे हमको पता है सॉल्यूट मास में गिवन है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो सॉल्ट. मास में गिवन है सॉलिड फॉर्म में, एंड आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है. वाटर के अंदर आपका सॉल्ट क्या हो जाता है, मिक्सअप, डिज़ोल्व हो जाता है, वो एडिशनल स्पेस उसके अंदर नहीं लेता. तो इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए प्लस नहीं करें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यहाँ पे नहीं करें. यहाँ पे सॉल्यूशन इज डायरेक्टली इक्वल्स टू सॉल्वेंट. अगर यहाँ पे इफ़ दिस इज गिवन एज 36 ml एंड दिस इज गिवन एज 100 ml, अगर ये ऐसे दिया होता, इफ़ नेक्स्ट केस है ना, अगर ये आपका ऐसे दिया होता तो क्या करते आप लोग, यहाँ पे दोनों ही किस टर्म्स में दिए हैं, वॉल्यूम और वॉल्यूम. वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या है, सेम यूनिट है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप. जब मास और मास यूनिट आए तब आपको क्या होगा, एडिशन. वॉल्यूम सेम यूनिट आए तब आपको क्या होगा, एडिशन. मास बाय वॉल्यूम डिफरेंट यूनिट आए तब आपको एडिशन नहीं करना है ना. तो यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट वन जैसा 36 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 36 मल्टीप्लाई 100 है ना. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. ओके, नाउ लेट्स सी द प्रीवियस स्लाइड. अब ये वाली चीज़ें देखते हैं. सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हमने कॉन्सेंट्रेशन देख लिया. नाउ लेट्स सी द सॉल्युबिलिटी. व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो अ मेजर, बट इट इज़ अ मेजर ऑफ maximum amount of solute, maximum amount of solute that can be dissolved
इन सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी क्या देती है आप लोग को? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि वो कितना सॉल्युबल हो सकता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर में। जैसे कि इन द लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये यहाँ पे लिखा था ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, और कितना गिवन है? 36 ग्राम। तो मीन्स 36 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बट एट दिस टेम्परेचर 36 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, now let's see a question on solubility. This is your exercise question, question number 3. What is the question? So Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. यहाँ पे डाटा हमारे पास है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं डाटा क्या है। यहाँ पे सब्सटेंस को डिसॉल्व किया डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट वन इज पोटेशियम नाइट्रेट, second is given sodium chloride, third is potassium chloride and the fourth one is ammonium chloride. At different temperature उनकी solubility दी हुई है। At temperature 283 Kelvin, in Kelvin is given, at 283 Kelvin potassium nitrate is dissolved 21 gram, है ना? It is dissolved 21 gram here. Let's change the color white to blue. 21 gram potassium nitrate dissolve हो जाता है 100 ml में। यहाँ पे दिया हुआ है सारा रिजल्ट डिसॉल्व किस में हो रहा है? 100 ग्राम ऑफ वाटर में टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो हियर 21 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम एट 283 केल्विन, बट एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर 283 टू 293, जैसे ही हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वैसे ही वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज। 21 से कितना अमाउंट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट? इट इज़ 32। नाउ आफ्टर इंक्रीजिंग मोर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी मोर इंक्रीजेस। Now 62 gram of potassium nitrate is getting dissolved in 100 gram of water. Now let's see what are the questions to be asked in this question. What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? 313 Kelvin पे पूछा है हमको पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट की 313 केल्विन पे क्या सॉल्युबिलिटी है? इट इज़ 62 ग्राम, but it is in 100 gram of water. So what would be it in 50 gram? If we halving the solvent, amount of solvent पहले कितना था? 100। जब 100 था amount of solute उसमें कितना डिसॉल्व हो रहा था? 62 ग्राम इन सॉल्वेंट। उसी टेम्परेचर पे कितना हो रहा था? सॉल्वेंट कितना था? 100 ग्राम। 62 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट this temperature which is 313 Kelvin. But what will be the amount of solute if I divided this solvent by half? क्वेश्चन में दिया हुआ 15 ग्राम में कितना होगा? तो it will be half. आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे कर सकते हो। 62 multiply 50 divided by 100, so you will get the answer as 62 divided by 2 which is 31 gram. So the answer of first question will be 31 gram. Next question is Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin. 353 Kelvin पे potassium chloride का solution, yes this one, and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? जैसे ही उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, आफ्टर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी उसने उस सॉल्यूशन को फिर क्या कर दिया? साइड में टू कूल डाउन, टू सेटल डाउन। जैसे ही वो सेटल डाउन होने के लिए रख देगी ये प्रोसेस हो जाएगी क्रिस्टलाइजेशन। पहले उसने सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या किया? टेम्परेचर राइज अप। अब सडनली वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? ड्रॉप। अब जो पार्टिकल्स थे सॉल्युबल तो हो चुके हैं, नाउ दे विल सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, एंड क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? क्रिस्टल्स विल फॉर्म, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। मीन्स ये कॉलम की बात करें 293 केल्विन पे सॉल्युबिलिटी हमको ईच सॉल्ट की फाइंड करनी है, एंड विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। चलो फाइंड आउट करते हैं। 293 केल्विन, पोटेशियम नाइट्रेट कितना डिसॉल्व है? कितनी सॉल्युबिलिटी उसकी? 32 ग्राम।
सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। कौन सा सबसे ज़्यादा सब्सटेंस डिजोल्व हो रहा है उसी टेम्परेचर पे उतने ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में? 32, 36, 35, 37, इट इज़ 37। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका डिजोल्व हो रहा है? अमोनियम क्लोराइड का एट सेम टेम्परेचर एट इन दिस सॉल्वेंट। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? C1 का, इट इज़ अमोनियम क्लोराइड। And let's see what is the last question. What is the effect of change of temperature on solubility of a salt? By observing this data हमने clearly observe किया है while increasing the temperature the solubility also increases of a substance. जैसे जैसे हम temperature increase कर रहे हैं वैसे वैसे amount of solubility substance की क्या होती जा रही है? increase. So yes, this is all for today. इस सेशन में हमने क्या देखा? कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्मूलाज, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तीनों फार्मूला का यूज़ देखा हमने। उसके बाद हमने देखा एक सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल था, काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज में इसको हमने सॉल्व किया, इसके चारों पार्ट को। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो हमारे टाइप्स बाकी हैं उनको हम कवर करेंगे, विच आर कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। सो फॉर दिस स्टे ट्यून्ड एंड प्रेस अवर बेल आइकॉन। आई होप टुडे you have learned something, and thank you so much.